Good morning, student. Now today I will start colloidal state. Okay. What is colloidal state? It is the colloid in which dispersed phase. It is a type of heterogeneous system. First of all, you know that colloidal state is a state of matter which is made up of heterogeneous system. You can say that it is the state of substance. It is the state of substance which is made up of dispersed phase and dispersion medium. Okay, which is made up of dispersed phase and dispersion medium. Or you can say that colloidal state in which dispersed phase and dispersion medium float with each other. They do not mix completely to each other, they float with each other. Okay. Now this point can be clearly understood by the comparing colloidal state with the suspension and with the solution. You can say colloidal state only colloid also. Let's see, here is solution. Size of particle. Here the size of particle is less than 1 nanometer, or you can say 10 to the power minus 9 meter. Okay. And solution is transparent. Transparent means you can say anything across the solution. You can see like you have put the water in glass, then you can see across the water. Similarly, when you mix sugar or salt in the water, that solution also will be transparent. Why? Because the size of particle is so small. Okay. Therefore solution is transparent. Okay. It is transparent. Now another thing is solute and solvent. Solvent mix to form homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture. As here is written, transparent or homogeneous. You cannot, next point you can write here, solute and solvent, and solvent cannot be, or you can say can be separated by simple filtration. Okay. Next is the colloid. Okay. Size of particle is here. Size of particle what? This is from 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 6 meter. This is the range, or you can say 1 nanometer to 1000 nanometer. This is the size of particle.
means size of particles in colloid is more than solution, therefore this colloid is translucent. Okay. Translucent means that type of solution or condition through which we can't see anything very clearly, like the transparent. As you can see, old glass window, sorry, old window glass, you can see that is translucent. Through across that window glass you can't see clearly after some year or some day. As you know that glass is the super cool liquid, therefore it after some time it become translucent. Okay, now solute and solvent make a heterogeneous system. Okay, अब heterogeneous, as you see here, dispersion medium and dispersed phase flowed with each other. That solute and solvent can be separated by a special type of filter. Okay, but not by simple filter. Okay, next is the suspension. Next is the suspension. And size of particle is here so large. Size of particle are more than 10 to power minus 6 meter, or you can say 1000 nano, more than 10 to power minus 6 meter or 1000 nanometer. Okay, and here solution mixture is opaque. Okay, and solute and solvent make a heterogeneous system. Since particles are so large, so they can be separated by decantation and filtration. Okay, solute and solvent
can be separated by decantation or simple filtration. Okay. Now once again I will tell you, then we will start the main topic. About the colloid, if you have to understand, you have to see the solution and suspension. बच्चों, कोलाइडल स्टेट एक्चुअल में एक मिक्सचर है जिसमें कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे के साथ फ्लोट करते रहते हैं, पूरी तरह से मिक्स नहीं रहते हैं, लेकिन जो साइज होती है पार्टिकल की वह थोड़ा छोटी होती है, मगर जो सॉल्यूशन की सॉल्यूट पार्टिकल उनसे थोड़ी बड़ी होती है। तो दोनों एक साथ फ्लोट करते हैं, पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाते हैं। ओके, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकें। अब इस बात को अगर हमें समझना है तो हमें जानना पड़ेगा सॉल्यूशन और सस्पेंशन को भी। हमारा जो ये कोलाइड आता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। कैसे आता है ज़रा देखिए यहाँ पे। सॉल्यूशन के पार्टिकल की जो साइज होती है 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। अब इतने छोटे पार्टिकल्स को हम किसी भी तरह से नहीं देख सकते, किसी भी तरह से नहीं देख सकते, कोई भी यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप लगा करके नहीं देख सकते। तो चूंकि दोनों आपस में इस तरह से मिल जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो हमारा सॉल्यूशन है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वैसे जैसे कि अगर हम ग्लास में वाटर रख दें तो उसके क्रॉस लाइट पास करें या उसके क्रॉस देखना चाहें तो कोई भी चीज़ हमें आसानी से दिख जाती है। जैसे कि अगर हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाएं, अगर शुगर नीट एंड क्लीन हो, कहीं भी डर्टी ना हो, तो उस कंडीशन में अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। हमारा जो साल्ट है वो भी अगर नीट एंड क्लीन हो, उसमें कोई कलर मिक्स ना हो, तो भी वो भी क्या करता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन रहता है। अब ऐसे सॉल्यूशन को हम फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते कि फिल्टर पेपर लगाया और गिराया तो चीनी अलग हो गया, नमक अलग हो गया, यानी शुगर अलग हो गया, साल्ट अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इस तरह से हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ ऐसा सिस्टम होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर पाना सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से मुश्किल है, तो वो सॉल्यूशन हमारा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, यानी वो मिक्सचर हमारा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। तो इस ट्रांसपेरेंट मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहेंगे, और ये हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब जो हमारा सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से या 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ी है। अब इस मिक्सचर में ये मिक्सचर जो होता है ऑपेक होता है। ऑपेक क्यों होता है कि पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है और जाकर के ये मिल जाते हैं जब, तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, लगभग ख़त्म हो जाती है। और ये जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बन जाता है वो हेट्रोजीनियस हो जाता है, डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चाहे तो हम डिकेंट करके निकाल लें, चाहे तो हम जो है कि सिंपल फिल्ट्रेशन से कर लें। जैसे हमारे पास इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉयल प्लस वाटर, ओके, सैंड प्लस वाटर, ओके। यहाँ पे हमें इसका एग्जांपल देखना है तो इसका एग्जांपल हमें मिल्क भी हो सकता है, मिल्क, गम सॉल्यूशन, गम सॉल्यूशन, ओके, कुछ भी। और ये तो हमारा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था साल्ट
and sugar, or you can take sugar water solution. ओके अब ये हमारे सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है कोलाइड। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में क्या आता है? कोलाइड आता है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कोलाइड आता है। अब इस कोलाइड की कंडीशन क्या कि पार्टिकल की जो साइज है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच में है। ओके 6 मीटर के बीच में है। आई बात समझ में? अब ये ट्रांसलूसेंट है। ये क्या है? ट्रांसलूसेंट है। यहाँ पे जो सल्यूट और सॉल्वेंट है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाए। सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय स्पेशल टाइप। एकदम हम सिंपल फिल्टर पेपर यूज करके हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हम उसे सेपरेट कर सकते हैं स्पेशल टाइप के फिल्टर को लेकर। तो इस तरह से आई होप स्टूडेंट आप लोग को सल्यूट सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है? नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट वी विल सी हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. Colloids are classified on the basis of different properties. There are some different properties, such you can see that the physical state of dispersed phase and dispersion medium, or you can say interaction between the dispersed phase and dispersion medium, and on the basis of type of particles of dispersed phase. So there are three basic classification. Three way different properties on the first is on the basis of different physical states. And next one is on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium. And third one is the different type on the basis of type of dispersed phase. On the basis of different types of or you can say types of the particles of dispersed phase. So student, there are three bases. One is the physical state, means to say what is the state of solute, or you can say dispersed phase. Student, here dispersed phase, first of all I will told you dispersed phase is similar like the solute in true solution, and dispersion medium is like the solvent of the true solution. So don't be confused and don't be panic to think that what is dispersed phase, dispersion medium. Dispersed phase is equivalent to the solute and dispersion medium is equivalent to solvent. Since we are studying colloidal state, so we are using different terms. Okay, in case of solution we use solute and solvent. In case of suspension we use suspend
for the solute. Okay. Similarly, here we use dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase for the solute and dispersion medium for the solvent. Now we once again we will see here on the basis of different physical state. Physical state of what? Dispersion medium, dispersion and dispersed phase. Okay. So here dispersed phase may be solid, dispersed may be liquid, dispersed phase may be gas, or dispersion medium may be also solid, dispersion medium may be also liquid, dispersion medium may be also gas. Okay, but both dispersed phase and dispersion medium both are gases, not possible. Okay, such type of polarity is not possible. On next one is on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium. And what is the interaction between the dispersed phase and dispersion medium? For example, if you want to dissolve sugar or salt in water, it will be easily soluble. And if you want to dissolve oil, then it will be not soluble in water easily. Okay, means if interaction is very good, they will, means interaction is positive, they will dissolve itself. If interaction is not positive, negative, that is, they will not dissolve in each other. Means if nature is different, then they will not dissolve in each other. So here is interaction is a very important thing for the basis. And next one is the different type of dispersed phase. Sometimes dispersed phase are of larger size, sometimes dispersed phase are very smaller size, below the colloidal size range, and sometimes dispersed phase are formed due to the aggregation of molecules. So there are different type of dispersed phases. One by one we will see here about each classification. तो बच्चों यहाँ पे कोलाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी पे करते हैं. जैसे पहला है यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज. डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज. अब यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है. जैसे डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, लेकिन अब इसमें जो है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों जो है गैसियस फेज में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपस में कभी मिक्स होंगे ही नहीं कि वो कोलाइडल स्टेट में आ जाए. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है कि इंटरेक्शन, किस तरह का इंटरेक्शन है, एक दूसरे में लगाव खिंचाव किस तरह का इंटरेक्शन है. जैसे कि अगर हम शुगर को पानी में डालते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, मिल गई. ग्लूकोज पानी में डालते हैं, मिल गया. साल्ट पानी में डालते हैं, मिल गया. लेकिन अगर पानी में हम यानी वाटर में ऑयल को डालेंगे तो क्या होगा, नहीं मिलेगा. तो इसलिए क्योंकि वहाँ दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट है, और हम लोग तो जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक. तो यहाँ पे इंटरेक्शन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक में, जो हम लोग आगे देखेंगे इसको. और अगला जो हमारा यहाँ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल फेजेस. डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स जो होते हैं डिफरेंट साइड के. कभी कभी क्या होता है कि बड़ा सा मालिक्यूल होता है कोलाइडल रेंज में आ जाता है, तो माइक्रो मालिक्यूलर हो जाता है. जैसे हमारा प्रोटीन है, फैट है, ओके, न्यूक्लिक एसिड्स है, तो ये सब माइक्रो मालिक्यूल है. सेलुलोज है, तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं. और इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मिल करके कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं,
तो मल्टी मालिकुलर वो बोले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े मालिक्यूल से एग्रीगेट होकर के कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं थ्रू द एग्रीगेशन, तो वो एक जो होता है हमारा एसोसिएटेड कोलाइड। तो इस तरह से हम एक एक करके कोलाइडल क्लासिफिकेशन को यहाँ पे देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है फिजिकल स्टेट। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium. Okay, so we can make following type of colloidal solution. We will take here dispersed phase, and next we will take here dispersion medium, and next we will take here कोलाइड। किस तरह का कोलाइड बनेगा, और लास्ट विल बी द एग्जाम्पल। ओके, दिस विल बी द एग्जाम्पल। आई बात समझे? तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, और कैसा ये कोलाइड बनेगा, टाइप ऑफ कोलाइड बनेगा और एग्जाम्पल हो जाएगा। सपोज कि हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉलिड केवल डिस्पर्स फेज लेते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सॉलिड, यहाँ पे हमने सॉलिड ले लिया, यहाँ पे हम लिक्विड ले लेंगे, फिर हमने सॉलिड ले लिया, और यहाँ पे हम गैस ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड अगर है तो इसको हम सॉलिड सॉल्व कहेंगे, और अगर सॉलिड लिक्विड मिला है तो केवल सॉल्व कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, सॉल्व कहेंगे। आई बात समझे? तो अब यहाँ पे हम गैस अगर इसमें मिला तो एरोसॉल बोलेंगे, एरोसॉल। अब इसमें हमारा जो है कि सॉलिड का क्या हो सकता है, इसे जेम स्टोन होते हैं, जेम्स स्टोन, स्टोन्स जो हमारे बहुत प्रीशियस पत्थर होते हैं, और जो हमारे कलर्ड ग्लास होते हैं, देखा होगा कलर्ड ग्लास। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे लिक्विड है सॉल्व, तो यहाँ पे हमारा पेंट आ जाएगा। पेंट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, याद होगा पेंट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एरोसॉल की बात करते हैं तो हमारा डस्ट और स्मोक इस सब में आ जाएगा, डस्ट एंड स्मोक, ठीक है। अब इस तरह से हमारे ये तीन हो गए। हमने यहाँ डिस्पर्स फेज को सॉलिड रखा और यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम को चेंज कर दिया,
अब इसी तरह से हम यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम जो है लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड, और फिर यहाँ पे हम जो है कि लिक्विड के साथ यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम अगर लिक्विड लेते हैं तो यहाँ पे हम गैस ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का जो बना वो तो सॉल्व हो गया, वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और ये जो हमारा लिक्विड लिक्विड मिला तो इसको तो इमल्सन बोलेंगे, इमल्सन। लेकिन लिक्विड और गैस अगर हमारा बना तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, एरोसॉल हो जाएगा, एरोसॉल। अब जैसे कि लिक्विड सॉलिड में मिला है तो सॉल्व हो गया, तो जैसे कि अब इसमें लिक्विड सॉलिड में मिला है तो हमारा जो जेलीज वगैरह होता है, ठीक है, जेलीज, जेलीज हमारे जो होते हैं, या जो हमारा बटर होता है, बटर देखा होगा, बटर, ये सब हमारे जो होते हैं लिक्विड सॉलिड से बना सॉल्व होता है। इमल्सन की बात करें तो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क, ओके, वैनिशिंग क्रीम भी हो सकती है, हम लोग जो हेयर क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं वो भी हो सकती है यहाँ पे, हेयर क्रीम, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है एरोसॉल। तो जो हमारा फॉग होता है, फॉग है, फॉग, मिस्ट है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक द गैस, solid and gas liquid. Only these two are available for the gaseous matter. Gas is not possible. Gas is not possible. Okay. So again we will see here the gas and solid. If gas solid is mixed, then it is solid sol again. Solid sol, okay, and liquid and gas is aerosol. Once again it is aerosol, or you can say you can give new name, that is foam, okay. An example of gas solid is what? Coke, charcoal, coke, charcoal, and humic stone, humic stone, okay. And gas and liquid is the froth, you can say froth, and let's see, you can take one more example, soap leather, soap leather, okay. These are the examples of this solution. So here we see that there are totally one, this is the one type of solution, this is the one type of solution, second type, and this one is the third type of solution, you can say. Or you can take 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 are the solid, 3 are the liquid, 2 from the gases. Solid is solid salt, gemstone, colored glasses. बच्चों यहाँ पे हम डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइडल स्टेट और एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 बार सॉलिड के रूप में डिस्पर्स फेज को रखा है, मगर डिस्पर्सन मीडियम को हमने चेंज किया सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में। अगर सॉलिड मिले हैं तो सॉलिड सॉल्ट बना, जेमस्टोन, कलर्ड स्टोन, ग्लास बन गया। सॉलिड लिक्विड सॉल्ट अगर हम लेते हैं तो हमारा इसमें पेंट आता है,
सॉलिड गैस अगर मिक्सचर लेते हैं तो इसमें एरोसॉल आता है, जिसमें डस्ट और स्मोक हम लोग देखते हैं। लिक्विड अगर यहाँ पे लेते हैं तो लिक्विड में अगर लेते हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में, तो लिक्विड सॉलिड यहाँ पे सॉल हो गया, जेलीज और बटर हो गए। और लिक्विड अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इमल्सन बन जाएगा, जो हमारा मिल्क और हेयर क्रीम है। सिंपल है एकदम से। लिक्विड गैस अगर लेते हैं तो एरोसॉल बन गया, फॉग जिसको हम कहते हैं, मिस्ट इसके अंदर आ जाएगा। गैस सॉलिड अगर मिक्सचर लेते हैं सॉलिड सॉल्ट बनता है, भी यहाँ पे कोक, चारकोल, प्यूमिक स्टोन। और गैस लिक्विड अगर लेते हैं तो फोम यहाँ पे बनता है, फ्रोथ एंड सोप, लेदर। अब इसको याद करना है हमें, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे बांट लेंगे। सॉलिड डिस्पर्स फेज लिया, लिक्विड डिस्पर्स फेज लिया, गैस लिक्विड लिया, और यहाँ पे अल्टरनेट है सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉलिड लिक्विड गैस इज नॉट पॉसिबल, एज यू नो दैट गैस एंड गैस कैन नॉट मिक्स टुगेदर, बट here is the mixture of gases. Solid salt. अब now type of colloid you have to see: solid salt, sol, aerosol, sol, emulsion, aerosol, solid salt, and foam. Foam is like the aerosol. Here solids are gemstone, colored glass, sol, paint, aerosol, dust and smoke, sol, jellies and butter, emulsion, milk and hair cream, aerosol, fog and mist, solid salt, coke, charcoal and pumic stone, and foam, fruit and soap leather. And you can take example of the whipped cream also. So these are the classification on the based of physical state of the dispersion medium and dispersed phase. Okay, I hope all of you have learned very well and understand very well. Now we will see next method, basis of the classification. You can note down. Okay, student, next day, now we will start next day, and you have to learn whatever I have taught you in earlier videos. You have to remember. In next video we will start study the another basis of classification. So you have to learn this. आपको ये सब पढ़ के आना है, जो हम आगे पढ़ाएंगे। दो हमारे जो मेथड बचे हुए हैं और पीछे जो हमने पढ़ा दिया उसको रिमेम्बर करके आएंगे, याद करके आएंगे, जो लर्न करके, और जो पूछना होगा वो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, आप इसे नोट कर लें। थैंक यू।